Welcome back, ladies and gentlemen of the internet. This is the Beyond Pixels podcast. My name is Anirudh and I'll be your host for today. And with me is a guest that we featured in our very first edition. He has been a supporter of us and he has been a believer of our dreams even before our magazine came out. So please welcome Ayush Kumbar to the podcast. Hi, bro. How are you, man? Kaisa hai? I'm good, bro. Are you currently studying anything? I completed my 12th. I did 1 year of BB. I left that. I am currently doing designing and graphics. With that, beside that I'm doing product and food photography. All right, so describe your first shots. How did you get started in photography? I clicked my first photo 2 or 3 years back of a dragonfly. It was a macro photo, similar to a macro photo, but it was shot using a basic camera. But I liked that photo so much, so I wanted to try more out of it. So I started clicking more macro shots, more shots which I can freeze the moments. So you can see in my profile, first earlier photos are mostly which I've captured the running photos or something like that. I've tried more of macro shots, and now I'm trying full time food and product photography. So you've tried macro and action. Yes. Did you do any other? Did you shoot any other genres? Action. Then I also tried portraits, but so I have not liked that. So I'm going full time into food and product because I have found that genre. Interesting. So were you using a DSLR? no, it was a phone, mobile phone. Do you still take macro shots? No, I've stopped completely doing macros. अगर किया macro तो food में थोड़ा experiment करने का macro shots. So how did you get started into food photography? Because it's like very far away from portraits and macro. Food photography, there were no inspiration like that. Means मैंने start कब किया? Last to last lockdown, first lockdown के समय. So it has been 1.5 year. 2020 के beginning में. हाँ, 2020 के starting में I've started food photography. So ऐसे start कुछ नहीं, Pinterest में मैंने सिर्फ images देखे. तो अभी घर पे कुछ ऑप्शन नहीं करने के लिए, तो मैंने मम्मी ने कुछ तो डिश बनाई, तो मैंने तो ऐसे ही वो मेरा फर्स्ट फोटो है फूड फोटोग्राफी में, जिधर कैसे मम्मी एक ऑमलेट बना रही थी, उधर एक प्लेट रखा था। मैंने सोचा क्या कि एक ब्लैक चार्ट पेपर लेता वो, और उस पर थोड़ा मैंने मैदा नहीं रहता क्या, मैदा थोड़ा सा डस्ट किया, जिससे एक थोड़ा सा टोन आता है। और बेसिकली जो सेटअप रहता है होम में कि जब हम कुक करते थोड़े, तो कैसे सब ऐसे कैसे भी रखा रहता, तो ऐसा रैंडमली रहता है, ऐसा कब सब कुछ एडजस्टेड नहीं रहता। तो मेरा जो फर्स्ट फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि सब रैंडमली अरेंज्ड है, ऐसे कुछ प्रॉपर सिमेट्री के नहीं है, कुछ कॉम्पोजिशन ऐसे कुछ नहीं, सब रैंडमली अरेंज थिंग्स है। और वैसे मेरे जो फर्स्ट फोटो मैंने पोस्ट किया उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। Interesting. So you started with food photography while in the lockdown. Did you also learn something else side by side, like another genre, another software? लॉकडाउन में मैंने अभी रिसेंटली दिस ईयर आई हैव लर्न फोटोशॉप, आई एम लर्निंग फोटोशॉप एंड दिस प्रीमियर प्रो. Okay, so you want to get into making videos as well on the side? So you can see recently I'm trying more my hands into videography, cinematography and videos due to reels also, a main reason or some time. Yeah, the photos are getting less reach. Photos are, yes, so that is the reason why I'm going more into videography and that. So we know that you're comfortable with food photography and product photography because they are indoors. Tell me about a genre that you're not comfortable with, a genre that you don't like to shoot. Street. I've tried my hands on street, but I failed so much. Results ही नहीं आते उस मेरे हिसाब से। तो जो लोग कैसे ऐसे बहुत रुकना पड़ता स्ट्रीट में, कैसे एक फोटो कैप्चर करने के लिए, वो मोमेंट को कैप्चर प्रॉपर करने के लिए थोड़ा पेशेंस, और ये मेरे हिसाब से वो होता नहीं है। अभी कैसे फूड एंड प्रोडक्ट्स में कैसे मैं सब कुछ एडजस्ट कर सकता, लाइट मेरे हाथ में रहता, कॉम्पोजिशन मेरे हाथ में रहता, वैसे स्ट्रीट्स में वैसे नहीं रहता। स्ट्रीट में सब रैंडम प्ले, बहुत पेशेंस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स ज्यादा रहने चाहिए आपको। ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो आप, कंपोज कैसे करने वाले, और वो कैसे लिमिटेड टाइम में है, लाइट भी लिमिटेड रहती है, तो आपको सब कंडीशन देख के शूट करना पड़ता। और मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, पर मेरे मतलब मैं जैसे सोचता हूँ वैसे तो रिजल्ट्स आते ही नहीं स्ट्रीट्स में, और रैंडम भी आए तो इतने अच्छे नहीं आते। So after lockdown ends, what is a genre that you would like to try, that you would like to learn and experiment on? I want to try this wedding photography, creative wedding photography रहते हैं ना।
Candid photography मतलब. I want to explore that. Okay, so could you tell me what gear are you using currently? So currently I am using the Canon M200 with the 50 mm 1.8 lens. Oh, okay, so that's a mirrorless camera, right? It is a mirrorless camera, but there is a one negative side to it. It does not have a viewfinder. Yeah, also my friend recently got an M50, but the difference is that people have started using their screen as much as they use their viewfinder. So I don't think, it makes as much difference to have a viewfinder in a studio setting. हाँ, वही डिफरेंस उतना ही है। और मिररलेस का डिसअपॉइंटमेंट क्या है, जो एम सीरीज है ना, उसके लिए कनेक्टर लेना पड़ता है, मतलब जो एडेप्टर लेना पड़ता है अलग से। और हाँ, उस क्योंकि एम सीरीज हाँ, लेंसेज नहीं है. उसके अलग लेंसेस नहीं है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, बट यू कुड फाइंड EF लेंसेज प्रॉब्लम कैसे? OLX में ना, सेकंड हैंड ले सकते हैं अडेप्टर लेके. एडेप्टर भी, उसका एडेप्टर ओरिजिनल एडेप्टर 8000 का आता है। लेंसेस सस्ते हैं कैनन के, पर जो एडेप्टर थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। Okay, so the shot that we featured in the magazine, जो बर्गर वाला था, उसके जो सेपरेट एलिमेंट्स से हवा में उड़ रहे थे, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू मैनेज टू टेक दैट शॉट? वो शॉट के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो मैं से पिंटरेस्ट पे सर्फ कर रहा था, मैंने देखा एक थोड़ा सा उसमें से, मैंने ट्राई करने का सोचा, पर मैंने कैसे वो जो फोटो मैंने देखा ना, मुझे ट्राई करना था, मैंने अगले दिन ही वो सब कुछ अरेंजमेंट की, पर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। तो इट टुक मी 3 to 4 days टू एग्जीक्यूट दैट फोटो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस दैट एवरीथिंग ऑन अ स्ट्रिंग। एवरी ऑब्जेक्ट इज हैवी एंड इट कॉन्स्टेंटली फॉल्स। सो ऐसे पूरा डिमोटिवेट हुआ था। पहले एक दो दिन तो मैंने ट्राई किया ना, तो ऐसे हो रहा था कि हो ही नहीं पाएगा ये तो। So how did you finally manage to take that shot? क्या इतनी सारे मुश्किलों के बाद में? मैंने वो शॉट है ना, एक दो सेकंड में वो बैलेंस किया होगा एकदम। मेरे तो उस टाइम फोन था, तो मैंने वो कांस्टेंट शटर स्पीड पे ही रखा था, मतलब क्लिक करते गया, और जितने शॉट्स आए फिर बाद में एक तो उसमें एक परफेक्ट आया होगा, तो वो मैंने यूज किया। पर अभी मुझे कैसे वो थोड़ा सा पता चला है, तो मैंने अभी जो रिसेंटली टाकोस और उसका जो लेविटेशन सीरीज की शॉट की है ना, मुझे थोड़ा आइडिया आया गया कि लेविटेशन शूट कैसे करने रहता है एक्चुअली। So what phone did you use before getting into the camera? Nokia 7 Plus। So you discovered that your story was featured by Nokia itself. What is the story behind that? फोटो फीचर किसने किया था? वो पहले नयन मराठी मालूम है आपको? हाँ, मालूम है, हम लोग ने उनको फीचर किया था मैगजीन में. हाँ, उसका हैशटैग मैंने यूज किया था, और वो बहुत बड़ा क्रिएटर था उस टाइम, मतलब ग्रो ही हो रहा था, तो मैंने किया उसका हैशटैग, उसने फीचर किया। उसके बाद ही वो थोड़ा वायरल, मतलब थोड़ा वायरल नहीं, थोड़ा एक एक्स्ट्रा रीच मिला उसको. रीच मिली उस फोटो को प्रॉपर। हाँ, लोगों को समझा कि वो शेयर ज्यादा है, लोगों ने ऐड किया ज्यादा स्टोरीज में। ऐसे वो वायरल नहीं हो, किसने लोगों ने ऐसा, मतलब फीचर पेजेस ने पोस्ट नहीं किया किसने फोटो, और उसने जब स्टोरी डाली उसके बाद उसको एक प्रॉपर Recognition मिला ऑडियंस उसको. रीच मिली। तो यस। Wasn't the burger shot featured by Nokia or was it something else? I'm not remembering. नहीं, बर्गर वाले फोटो को नहीं किया था। मेरे जो फ्लैटलेस है ना, उन्होंने उनके एक ये था अपना, जैसे कंपनीज रियलमी कैसे एक कैंपेन चलाती है कि इस हिसाब से फोटो खींचने का इस वीक में, उस हिसाब से नोकिया ने मेरा जो एक फोटो था, उन्होंने फूड फ्लैटलेस कैंपेन है, कॉन्टेस्ट था, उन्होंने मेरा फोटो उसमें यूज किया था, और वो मल्टीपल नोकिया के अकाउंट्स में यूज किया था। ओके, सो आप जो जॉनरा शूट करते हैं उसके लिए आइडियाज़ और प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्या आप मेरे को बता सकते हैं आपके आइडियाज़ कैसे आते हैं? हाउ डू यू प्लान योर शूट्स? सो बेसिकली आइडिया तो ऐसे कभी-कभी बैठे-बैठे आ जाते हैं मुझे। कभी कुछ देखा बैनर पे, कुछ कभी ऐसे इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, कभी कुछ ऐसे रैंडम। कभी-कभी मैं थोड़ा मेरे खुद से आइडिया आ जाते हैं कि जो महाराष्ट्रियन डिशेज़ रहते हैं, उन्हें कैसे थोड़ा अट्रैक्टिव मतलब आते हैं आइडियाज़ तो मैं क्या करता हूँ, वो आइडियाज़ एक डायरी में थोड़ा ड्रॉ करके रखता हूँ, और फिर वो आइडिया में कैसे बैकड्रॉप यूज़ होंगे, क्या यूज़ करने वाला हूँ, प्रॉपर सेटअप क्या रहने वाले, प्रॉप्स क्या है उसमें यूज़ होने। तो आप प्रॉप्स भी लिखते हैं अपने स्टोरी बोर्ड पे? हाँ, यस। सो डू यू डू दिस फॉर एवरी फोटो? Yes, yes. For every photo, I am doing this. So the results are better, no? So अगर ऐसा नहीं होता ना कि random कुछ भी click किया। डू यू इंक्लूड प्रॉप्स एंड बैकड्रॉप्स इन द स्टोरी बोर्ड इटसेल्फ? In those storyboards, I include my props, which I will be using the backdrops. So do you have an app that you use to make storyboards or do you draw them like physically on a pen and paper? No, I do on a use pen and paper. और sometimes I use the notes app on my phone. So पूरा idea आ जाता है कि colors कौन से रहने वाले, basic एक rough sketch. Paper पे कैसे color execute नहीं हो पाता ना। How do you choose the props and the backdrops? Is it according to the photos or according to the dish?
प्रॉप्स एंड कलर बैकग्राउंड डिपेंड कि मुझे वो शॉट मूडी दिखाना है, पूरा वाइट दिखा, मतलब पूरा ब्राइट ही ऐसे एक फील लाना है कि वाइब क्या है फोटो की, उस हिसाब से प्रॉप्स और बैकड्रॉप सिलेक्ट होते हैं. So, how did you learn all of this stuff? Choosing the colors, choosing the backdrops, etc. Did you go through a course? इसे लर्न नहीं किया मैंने, ऐसे प्रैक्टिस से ही हो पाया. Trial and error, basically. प्रैक्टिस से दूसरे क्रिएटर्स की, हाँ, ट्रायल एंड एरर, दूसरे क्रिएटर्स के थोड़े देख के कि वो कैसे कलर्स यूज करते हैं, कलर थ्योरी कैसे यूज कर रहे हैं वो, तो उधर से थोड़ा सीख सीख कर. So, do you follow trends or do you do your own thing? Like अपने हिसाब से करना, मन के हिसाब से. अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखोगे ना तो सब रैंडम है, ऐसा कुछ मेरा फीड ही नहीं है, तो मैं ट्रेंड के हिसाब से जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेंड करके क्या करने का है ना, वो एक बार खत्म ही हो जाएगा ट्रेंड. एक और फोटो जो हम लोग ने फीचर किया था, इट वाज अबाउट जन्माष्टमी. इट वाज अबाउट अ फूड फ्लैट वे विद द थीम ऑफ जन्माष्टमी. हाउ डिड यू शूट दैट वन? मेरे पास कैसे कॉन्सेप्ट था कि बाकी के सब बैकड्रॉप मेरे सिलेक्टेड थे, और वो पूरा फ्रेम एम्प्टी दिख रहा था, मतलब उस एक क्या बोलते हैं, फ्रेशनेस और अलाइवनेस नहीं आ रहा था वो फ्रेम में, वाइब नहीं आ रहा था वो एक सेलिब्रेशन का. तो मेरी एक सिस्टर आई थी छोटी, तो मैंने डिसाइड किया कि उसके हाथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्णा के थोड़े कैसे थोड़े चबी, एक थोड़े हैंड्स रहते हैं. हाँ, अभी हाँ, तो हम लोग छोटे बच्चों को यूज करवाते हैं, कृष्णा का कॉस्प्ले करवाते हैं उनसे. यस यस यस, तो मैंने उस हिसाब से वो ट्राई किया. मैंने कलर किया ब्लू अपना, और उधर वो थोड़े बैंगल्स बिंगल्स टाइप पहना दिया, और फिर वो एक एसेंस आया उस फोटो में. Okay, so do you plan to go pro in the near future? I'm currently making, I'm working for a companies also, means I'm freelancing. So do you get paid for these, like, or do you do them for your portfolio? The recent shoot means जो अभी 5-6 जो शॉट्स है वो कंपनी के साथ वो पेड ही थे. So what about your work sets it apart from other food photographers and product photographers? What makes your work unique? Basically the levitation work that I do, I think that sets me apart, because nobody currently from Maharashtra or Pune is doing that work. So I think that sets me apart from others, and most of the clients that also are coming are from that levitation work only. So you wanted to become a wedding photographer after the lockdown ended. So are you trying to do something for that, like do something towards getting into that? Are you trying something new apart from food photography and product? Yes, definitely. So I've tried maternity shoots, baby shoots. So I'm trying side by side also this. कभी कभी कैसे होता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, तो वो एक बाहर का कुछ होना चाहिए शूट करने के लिए. So that was supposed to be my next question. Lockdown has been hard for everybody. हम जो indoor photographers है, जो shoot करते हैं स्टूडियो के अंदर, उन लोग के लिए भी ये hard ही है. They have been, getting creative blocks. How have you coped up with your creative blocks? आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे भी क्रिएटिव ब्लॉक हुआ था. मैंने सिर्फ 1 मंथ आई डिड फूड फोटोग्राफी प्रॉपर, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम. फिर 2 महीने में क्रिएटिव ब्लॉक में ही था. No, that is a very hard thing being in creative block, and that too for multiple months. मेरा जो creative block था, it happened for years, multiple years. So while I was in the creative block, what I did was I used to watch a lot of photography videos, basically how-to tutorials and Photoshop tutorials, something like that. So did you do something similar? मैंने थोड़ा कैसे कि उस ब्लॉग में थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देखा, एडिट कैसे करने के, टोन्स कैसे लेने के थोड़े. आई स्टार्टेड लर्निंग, थोड़ा कलर थियरी के बारे में थोड़ा देखा. So did you learn any new tricks from the videos that you watched? There is no trick, it is all about practice. The more you practice, the more you get better at these things. So what I'm asking is, did you learn anything that has helped you make your workflow faster, like any tips? मेरा भी वर्कफ्लो फास्टर नहीं रहता, मेरा वर्कफ्लो बहुत स्लो रहता. अभी एक आइडिया मेरे आई ना पास मेरे पास, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए 1 वीक 2 वीक्स ऐसे लेता हूँ मैं. पर वो जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा 100% उसमें रहना चाहिए, ऐसा सोचता हूँ मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ. So do you prefer to take shots as much as possible in camera, or do you prefer to do them in the post? Photoshop में करना, do you prefer it? Like, do you make shots deliberately so that you can know that you can fix that in post? नो, डेफिनेटली इन कैमरा अगर कम होगा तो प्रोसेस में, मतलब जब पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो काम कम ही होगा ना उस हिसाब से. पर जो लेविटेशन शॉट्स रहते हैं उसमें ज्यादा पोस्ट पे काम ज्यादा रहता, पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा काम करना हाँ, पड़ता. wire removal is like a lengthy process. वायर्स निकालना, और एक कैसे कभी कभी जो शॉट्स अभी मेरा जो रिसेंट मैंने पोस्ट किया उसमें मीट बॉल्स है ना, वो लेविटेट कर नहीं सकते. वो बाउल है जो जिसमें स्पगेटी है, तो वो एडिट करना, वो मीट बॉल्स एडिट करना थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है. Have you made or used somebody else's presets before? Or have you made your own presets anywhere?
आई डू नॉट लाइक प्रीसेट्स बिकॉज हर एक फोटो अलग रहता है. प्रीसेट डाला तो फोटो का वाइब और जिस हिसाब से आपने खींचा था कि ये फोटो ऐसे दिखने वाला, प्रीसेट डाला तो वो पूरा उसका यही खत्म हो जाता है. एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते वो. So there is this feature in Photoshop called actions. If you are doing something repetitive, बार बार एक चीज को कर रहे हैं, so what you can do is you can record that, and then the next time you are going to do that, you can just simply click on that action and press play. And then जो आपका 15-20 मिनट का जो काम है वो आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं. So have you experimented with that feature yet? No, I have not, because I am learning Photoshop, no, so I have not. I do not know all the features of that. So talk about YouTube. Tell me some of your favorite creators over there. Peter McKinnon, Sam Colder. अरे अपना उन्मेष, अपना Piximperfect. Do you watch him? He makes very nice Photoshop tutorials. हाँ, Piximperfect. उसके ट्यूटोरियल देके फोटोशॉप थोड़ा थोड़ा सीखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा. My man. वो अच्छे से बताता है वो. We've known for a while, because we've seen videos of food photography ka behind the scenes where people don't actually use the real food. They use fake foods to shoot the photos because it appears better. Like for example, while taking shots of pancakes, and they use motor oil because that sticks better to the pancakes. Have you ever used fake foods to take shots? Yes, for milk I use white paint और कुछ तो पानी में डालने का. For coffee also I do the same. For juices also, for juices trial I use something alternative to that. अभी मैंने recently एक white ऐसे पूरा white backdrop पे एक white juice shoot किया, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि white juice में क्या यूज करूँ. तो मैंने क्या किया, राइस कुक किया. राइस के पानी जब कुक करते हैं ना तो राइस का वो पानी white हो जाता है. तो मैंने वो जूस के रिप्लेस किया. वो किसी को समझ में नहीं आता ना कि वो उसमें क्या है, राइस का पानी है कि जूस यूज किया मैंने. दिखने में वो सेम ही दिखता है वो. तो कुछ बाहर जाने की भी गरज नहीं है ना, वो जो घर में वो यूज कर सकते हैं हम प्रॉपरली. Has it ever happened to you that a client who's paying you has had an atrangi requirement from you? Like after you have given him the work, he's like मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे करके चाहिए, पूरा काम वापस करके दो. ऐसा कभी हुआ है क्या? मैंने पेड वर्क नहीं था मेरा, एक कोलैबोरेशन था मेरा कंपनी के साथ. तभी ऐसा हुआ था कि उनका रिक्वायरमेंट क्या था स्टार्टिंग में. उन्होंने बोला था कि लेविटेशन शॉट्स खींचने के 2 और वो भेजने के. तो उनका 2 दिन बाद फोन आया कि ये कैंसिल करने का है. लेविटेटिंग जो शूट उनका प्लान था वो कैंसिल करके तुम हमें वीडियो भेजो 2. तो मैंने वीडियो ट्राई किए तो उन्हें वीडियो पसंद नहीं आए. तो एक वीडियो मुझे 3 के 4 बार बनाना पड़ा. तो ऐसे 6 वीडियो उन्हें भेजे मैंने और उन्हें एक भी पसंद नहीं आया. तो वो बहुत प्रॉब्लम हुआ था उस क्लाइंट के साथ. मतलब क्लाइंट नहीं था वो, एक कोलैबोरेशन है. और उन्हें कुछ नहीं, उन्हें डायरेक्ट बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा. वीडियो बनाने में मालूम है कितना देर लगता है, कितना टाइम देना पड़ता है उसमें. What would you say is the most difficult part about food photography? Finding props, because the props which are available online for food photography are so expensive. कुछ जुगाड़ करके मैं ऑफलाइन ढूंढता हूँ, तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें, पर मिल जाते. Okay, so what is the plan for the next 5 years? आगे जाके क्या करना है आपको? प्रॉपर एक स्टूडियो रहना चाहिए फूड एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए. और एक अगर मैं थोड़ा एक्सपांड हो गया वेडिंग में और उसमें, तो उस टाइम उसमें भी फुल टाइम कर सकता हूँ ऐसे. So what is your dream thing to do beyond photography? Something you would like to do? Yeah. ट्रैवल द वर्ल्ड, मीट न्यू पीपल. कैसे जितने नए लोग से बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस अलग रहता है, तो नए आइडियाज आते हैं, नई क्रिएटिविटी से ये हो और जाता नया है. खाना मिलता है. हाँ, नया फूड तो रहता ही है. तो वही. Do you have a dream shot, and is it about food? इट्स नॉट अबाउट फूड और एनीथिंग. इट्स So describe me what is. ऐसा है कि एक विलेज का सीन है. एक बफेलो है, Mm-hmm. उसमें 2-3 छोटे लड़के हैं ना, वो बफेलो को बात कर रहे हैं. और वो बफेलो जो कुत्ता जैसे नहीं, हम जब कुत्ते को बात कराते तो ऐसे वो मूव होता, शेक होता है, तो उसके ड्रॉप्स ऐसे थोड़े हिलते हैं. तो सेम वैसे ही थोड़ा बफेलो मूवमेंट करेंगे और वो फ्रीज शॉट कि बच्चे भी कैसे खुश है और वो बफेलो भी मूव हो रहे थे और प्रॉपर ड्रॉप्स ऐसे आजू-बाजू फ्रीज हो रहे. तो something like that. Sounds very, very cinematic. Do you have any message to the listeners? Any final thoughts? काम करते रहो बस, और कुछ नहीं. अच्छा नहीं, ठीक है. लोग नहीं, कैसे आजकल इंस्टाग्राम को सबको है ना क्विक चाहिए, बिना मेहनत करते ही सबको वायरल होना है, काम एक नहीं पोस्ट करने का डालो, किसी. मिलियन लाइक्स मिलना चाहिए. हाँ, हाँ. वही. पर ऐसे सोचता नहीं ना कि उतना एफर्ट भी डालना पड़ता है. लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ नहीं, एक थोड़ा वीडियो बनाएंगे, वायरल हो ही जाएगा. ऐसे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लोग लेते कि कंटाला करते ज्यादा. क्योंकि so आप कितने साल से कर रहे हैं अभी फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में 3 इयर्स से हूँ, पर प्रॉपर 1.5 ईयर से फूड एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ. प्रॉपर भी नहीं, प्रॉपर तो मैंने अभी 3 महीने से ही चालू किया है. मतलब प्रॉपर लाइटिंग. Where can people find you and contact you?
On Instagram, definitely. Okay, so do you have any other like portfolio websites, I or do have you have your own website? I'm working on my website, and मेरा अभी portfolio Behance पे भी है, Behance and Acha, okay. Instagram. Thank you so much for joining us today. This was a very nice conversation, and hopefully we can meet someday in person. Thank you all for joining and listening us this far. We will put all of Ayush's links in the description below where you can find him and go contact him and spread some love. Until then, take care of each other. Take care of yourselves. We'll see you again very soon. Bye bye.